خداوند پاک خدا مسا سے ہم برکت پانا چاہتے ہیں. ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تکتے ہیں. خدا رو مجھے چھو. آپ کو پتہ یونا نبی نہیں جانا چاہتا تھا تو خدا نے کس طرح سے اسے بھیجا؟ اپنی خاص قدرت کے ساتھ. ہاللیلویا. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم اس سے بھاگیں گے یا اس سے دوڑیں گے تو ہم شاید اپنی نظر میں کامل بن جائیں گے، اپنی نظر میں بہتر ہو جائیں گے. لیکن حقیقی طور پر یہی ہے کہ ہمارا خدا جو چاہتا ہے ویسا ہوتا ہے. آمین. ہاللیلویا. آئیے آج کلام خداوند کو سنانے کے لیے حصہ ہے. وقت جو ہے وہ تھوڑے ٹائم میں وقت کافی گزر چکا ہے، آپ سب بھی واقف ہیں. آج ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے بائبل مقدس میں سے خروج کی کتاب اس کے 17 باب بیسکلی کلام سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قوم بنی اسرائیل کے ایک خوبصورت قصے سٹوری سے واقف ہو سکیں. کیا آپ مجھے 15 منٹ دینا پسند کریں گے؟ 15 منٹ میں میں چاہوں گا کہ اپنے ٹاپک کو میں کلوز کر لوں. لیکن یاد رکھیں آج کا کلام نصیحتی کلام ہے، آج کا کلام بھید کا کلام ہے، آج کا کلام ہماری زندگیوں کے لیے برکت کا کلام ہے. تو اس کلام کو ضائع کرنا جانے دیجیے. میں نے سب سے پہلے اس ساری کلیسیائی ترتیب کو بہتر کیا، کسے کہاں بٹھانا ہے، کسے کدھر کرنا ہے، تاکہ ہم اس کلام کے وسیلہ سے جو ہے وہ انکرپٹ نہ ہو، ہم مس گائیڈ نہ ہوں، کوئی بھی ایسی بات ہمارے کام سے چھوٹ نہ جائے، کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جو ہم اپنی زندگی میں چاہے اور اسے ہم آج کے وقت یہاں پر نظر انداز کر دیں. اس لیے میرے عزیزوں میں چاہتا ہوں بغیر آنکھ جھپکے ہم خدا ان کے کلام کی طرف رخ کریں گے. میں چاہوں گا کلام خدا کوئی پڑھے گا یا میں؟ خروج 17واں باب ہے. آپ نے اپنی بائبل کو کھولیے اور کلام خداوند کو سامنے رکھیے. خروج کی کتاب اور اس کا 17واں باب اور اس کی 8ویں آیا مقدسہ سے پڑھنے کی سعادت ٹیچر انشپا کرے گی. سو کلام اقدس پڑھنے میں میری رہنمائی کیجئے. مائک لے لیجئے بچے. پریز جیسس. او یس یس یس. بھائی نے ایک خوبصورت گیت گایا اور بہت ہی پیارے بھائی ارنسٹ مال جو کہ مسیح میں سو گئے، یہ ان کی زبان مبارکہ سے میں نے یہ سنا اور بڑی برکت حاصل کی. اور میں نے بیٹھے ہی بیٹھے سوچا کہ آج کا کلام بھی اسی ٹاپک پر ہونا چاہیے. ہاللیلویا. میرے ذہن میں خروج کی کتاب اور اس کے 17ویں باب کی 8ویں آیا مقدسہ، یعنی کہ ہم اس سارے باب کی ہی سٹوری کو 15 منٹ میں اپنے لیے اپنی جو خاص رہنمائی کے لیے ہم سیکھیں گے. جی بہن. تب عمالکی آ کر رفدیم نے بنی اسرائیل سے لڑنے لگے اور موسیٰ نے یشوع سے کہا کہ میری طرف کے کچھ آدمی چن کر لے جا اور عمالکیوں سے لڑا اور
और मैं कल खुदा की लाठी अपने हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। सो मूसा के हुक्म के मुताबिक यशवा इमालकियों से लड़ने लगा। सुनिए, अमालेकी एक ऐसी कौम थी जो बनी इस्राएल के साथ लड़ने के लिए, जब मिस्र की गुलामी का सिलसिला था और इसी दौरान 17वें बाब में खास तौर पर प्यारी बहन साथ साथ पढ़िएगा, फिर आपको मैं बताऊंगा, फिर आप आगे बढ़िएगा। इस 17वें बाब में 17वीं बाब की इस सारी स्टोरी में खुदावंद जो हमारे साथ बांट रहे हैं वो कुछ यूं है। कितनों को याद है कि कौम बनी इस्राइल जो है मिस्र की गुलामी से निकलकर बाहर आई, उनको छुड़ा कर लाने वाला कौन था? सुने, मैं जब कहूंगा तब पढ़िएगा। जब मूसा कौम बनी इस्राइल को छुड़ाकर मिस्र की गुलामी से निकल आए तो वो कहां पर पहुंचे? बियाबान में। हालेलुया, साथ साथ मेरा साथ देते रहिएगा। वो बियाबान में पहुंचे और बियाबान में आकर वो क्या करने लगे? एक दूसरे के काम सराई और एक दूसरे के साथ हफरा तफरी की बातें करने लगे। मूसा कहां ले आया है? इससे तो बेहतर हम पीछे थे, चले हमें एक वक्त की रोटी नसीब हुआ करती थी। कौन सा मुल्क, कौन सी जगह, कौन सा ऐसा वादा जो मूसा के खुदा ने मूसा से कर दिया और मूसा हमें लेकर यहां पर आ गया। अब भूख है, प्यास है, पानी के लिए बिलक रहे हैं और इसी दौरान एक कौम उन पर चढ़ाई करने के लिए वहां पर नमूदार हो जाती है। और प्यारी बेटी ने खूबसूरत रेफरेंस के साथ नाम पढ़ा, उनका नाम अमालेकी है। ऐसी गैर कौम है कि जिन्होंने आकर तंगी के बायस, कमजोरी के बायस, और जब हम कमजोर होते हैं उस कमजोरी के बायस, जब हमारे जिस्म को कुव्वत की जरूरत है, जब हमारे जिस्म को लिबास की जरूरत है, जब हमारे जिस्म को पीने के लिए अच्छा पानी दरकार नहीं हो रहा, हम वादियों में, हम सहराओं में, बियाबानों में भटक रहे हैं और हमें पानी की बूंद तक नहीं नजर आ रही। वो गिला करते हैं, शिकवा करते हैं और कहते हैं, यशवा बताओ, यशवा क्या हारून और मूसा हमें यहां पर क्यों कैच लाए? क्या हमें मारने के लिए ये यहां पर खेच लाए हैं? सो इस 17वें बाब की स्टोरी में हमें जो कुछ मिलता है वो कुछ यूं है कि जब मूसा अपनी कौम के लिए लड़ता, अपनी कौम के लिए जंग करता है, ये सारा वाकया मेरे अजीजों जंग के हवाला से है। एक ऐसी जंग जो हमारी जिंदगियों में असरदार साबित हो रही है, लेकिन हम उस जंग में बहुत ही कायर साबित हो रहे हैं, बुज़दिल साबित हो रहे हैं, लड़ नहीं पा रहे, जंग नहीं कर पा रहे। लेकिन आया कि हमें किस तरह से जंग करने की जरूरत है। शायद हमारी रहबरी करने वाला कोई मुखालफे मसीह है जिसके कहने पर हम लगे हुए हैं, जिसकी बातों ने हमारे दिल को, दिमाग को, सोचों को किसी और ही सूरत लेकर जा रहा है। जी बहन पढ़िएगा। और मूसा और हारून और हूर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई, और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था बनी इसराइल गालिब रहते थे, और जब वो हाथ लटका देता था तब इमालेकी गालिब होते थे। और जब मूसा के हाथ भर गए तो उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वो उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक इधर से दूसरा उधर से उसके हाथों को संभाले रहे। तब उसके हाथ
आफताब के गुरूब होने तक मजबूती से उठे रहे और यशवा ने इमालकियों और उसके लोगों को तलवार की धार से शिकस्त दी। तब खुदावन ने मूसा से कहा, इस बात की यादगारी के लिए किताब में लिख दे और यशवा को सुना दे कि मैं इमालकियों का नामो निशान दुनिया से बिल्कुल मिटा दूंगा। और मूसा ने एक कुर्बान गाय बनाई और उसका नाम यहोवा नसी रखा। और उसने कहा, खुदावन ने कसम खाई है, सो खुदावन इमालकियों से नस्लदार नस्ल जंग करता रहेगा। आमीन। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आज जी मूसा ने कौन सी कसम खाई भाई बाबर? अमालिकियों के साथ जंग करके क्या चीज दिखाई है कि यहोवा नसी। हालेलुया। किस बात का जिक्र मिला? यहोवा नसी। यहोवा नसी भाई ने गीत में गाया और मेरे दिमाग में ये बात आई कि हाँ, हम एक ऐसी कौम है जो कि यहोवा नसी पर ईमान रखती है और वो यहोवा नसी जो ईमान का बानी है और वो यहोवा नसी जो खास तौर पर हमें फतह के परचम के बारे में बताता है। आज हम सीखेंगे कि यहोवा नसी क्या है। कितने जानते हैं कि यहोवा यदि का मतलब क्या है? प्रेज द लॉर्ड। और कितने जानते हैं कि यहोवा राफे है, यानी कि यहोवा शिफा देने वाला है, यहोवा शाफी है। हम गीतों में और हम ऐसी कहानियों में इन अल्फाजों को सुनते हैं मेरे अजीजों। ये बात हम सिर्फ अपने दिमाग में इसलिए लाते हैं क्योंकि हमने कहीं से सुना या पढ़ा होता है, लेकिन हकीकी तौर पर हम इन लफ्जों की अहमियत को नहीं जानते। यहोवा राफे यानी कि यहोवा शिफा देने वाला है। ये लफ्ज अगर हम अपनी जुबान मुबारका पर लाते हैं तो ये ईमान की बढ़ोतरी है, ये ईमान का वो भेद है जो खुदावंद हमारे साथ बांटता है। और अगर हम यहोवा नसी कहते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसके परचम को बुलंद करते हैं, हम उसके झंडे को बुलंद करते हैं और वो जंग में फाते हैं और जो फाते देने वाला है वो यहोवा नसी है। सो इसलिए मेरे अजीजों, आज की इस स्टोरी में हमें जंग का पस मंजर दिखाई दे रहा है कि जब नहाते थके और खुराक से नडाल, पानी से नडाल, एक कौम जिला बदर होकर एक ऐसे सफर के लिए निकल जाती है और उसी दौरान कोई दूसरी कौम उन पर आकर चढ़ाई कर देती है। इस्तिस्ना की किताब और उसके 25 बाब को भी हम खोलेंगे प्यारी बहन, और वहां पर भी हम इस पहले की जो है वो खास डेफिनेशन को पढ़ेंगे। वहां पर भी हमें यही वाक्य मिलता है कि जब वो नहाते थके हुए कमजोर लोग जो पीछे रास्ते में आ रहे थे, अमालेकियों की फौज ने उन्हें पीछे से घेरा और उन्हें मारना शुरू कर दिया और उन पर ऐसा जुल्म व तशद्दुद किया और खुदा के खौफ से जरा भी मुतारफ ना हुए, खुदा का खौफ ना रखा, बल्कि उन्होंने बेरहमी के साथ उन्हें कत्लो गारत करना शुरू कर दिया। जब ये बात आगे उस्ताद यानी कि कलीमुल्लाह मूसा तक पहुंची तो उन्होंने यशवा से कहा, यशवा तलवार उठा और इन
आदमियों को ले जो तुझे तेरी नजर में बेहतर नजर आते हैं, और जाकर मैदान में जंग कर। जब मेरे अजीजों मुकद्दस यशुआ अपनी फौज, अपनी पलटन को लेकर, जो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि कमजोर है, जिनको अच्छे तरीके से खुराक नहीं मिली, पानी नसीब नहीं हुआ और घर से बेघर है, वो जंग की क्या तैयारी करेंगे? उनके पास तो ना कोई औजार, ना कोई ऐसा भाला, ना कोई ऐसी तलवार, ना ढाल, ना सप्पर, ना लिबास। एक तरफ ऐसी कौम है जो पूरी तैयारी के साथ चढ़ाई करने के लिए पहुंची है, एक तरफ वो कौम जो पूरे मंसूबे पर कि हाँ, हम अमालेकी जब इसराइल पर अटैक करेंगे, जब कौम बनी इसराइल को वहां रास्ते में मार गुजराएंगे, वहां पर उन्हें नढाल कर देंगे, कत्लो गारत करेंगे और फिर हम उस पर गालिब आकर फतह पाएंगे। ये लोग एक मंसूबे के तहत निकले हैं। और दूसरी जानब ऐसी कौम जिन्होंने रास्ते में देखा कि पीछे कोई कौम ऐसी चढ़ाई कर रही है, और वो कौम अमालेकियों की है। जब उन्होंने कत्लो गारत के सिलसिले को जारी किया और यहोशू मैदान में उतरा, और इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जंग करना शुरू कर दिया। थोड़े बहुत जो कुछ उनके पास था उससे छीना झपटी और लड़ाई का सिलसिला जारी हो गया। अब यहां पर यहोवा मसीह जो है फतह देने वाला, वो किस तरह से पेश आता है। और दो तरह की जंग है मेरे अजीज जो हमारे जहनों में है। एक जिस्मानी जंग है जिसे हम फिजिकली कहते हैं। ये फिजिकली जो जंग है, ये बेसिकली तौर पर हम समझते हैं कि अगर हम हाथ से लड़ेंगे तो फिर ही किसी को शिकस्त देंगे। अगर हम किसी चीज से किसी पर अटैक करेंगे तो तब ही होगा। लेकिन एक जंग ऐसी हमें मुकद्दस मूसा नबी बताते हैं कि उसका करने का तरीका ही और है। हालेलुया। मुकद्दस दानियल नबी बताते हैं कि उसका जंग करने का तरीका ही कुछ और है। याद रखें मेरे अजीजों, जब जंग के लिए पलटन मैदान में पहुंच गई तो जनाबे मूसा पहाड़ पर चले गए। जब जनाबे मूसा वहां पर मौजूद है तो उनके हाथ में उनका आसा, खुदा की दी हुई लाठी मौजूद है। उन्होंने उस लाठी को, उस आसे को, उस यहोवा नसी को बुलंद किया और दोनों हाथों को ऊपर करके वो खुदा से प्रार्थना और खुदा से दुआ, खुदा से सारी जंग की जो है वो कुव्वत को मांगते रहे कि खुदावंद मेरी कौम लड़ रही है, मेरे लोग नहाते हैं, थके हैं, बोझ से दबे हुए हैं, उनके पास इतनी कुव्वत नहीं। यहोवा नसी तू है, तू ही हमारा भरोसा है और तेरे पास कुदरत है। तू कुदरत के साथ हमें फतह करेगा। हमारा ईमान भरोसा सिर्फ तुझी पर है। जब उन्होंने ऐसे देखा तो मैदाने जंग में इस्राएली फतह होना शुरू हुआ। हालेलुया। इस्राएलियों की मार धाड़, इस्राएलियों ने तेजधार तलवारों से उनको चीरना शुरू कर दिया। आज जब मर्दे खुदा मूसा के बाजू नीचे आ रहे, लटकते हुए जोर के बायस, थकावट के बायस नीचे, आप समझ सकते हैं कि कलीमुल्लाह मूसा भी जो खास तौर पर मर्दे खुदा एक शख्स थे। हालेलुया। वो भी थके हुए, इस दबाचे में, इस पड़े हुए पहरे में हमें महसूस होता है कि वो थक कर अपने बाजू नीचे करते और कौम
कौन सी अमालेकी कौम उन पर चढ़ाई कर। जब हम खुदा से इनकरप्ट हो जाते हैं, फासलादार हो जाते हैं, तो क्या है कि खुदा हमें खुद ब खुद शिकस्त दिखाता है कि आपका राब्ता मेरे साथ नहीं, आप मुझ में कमजोर पड़ गए हैं। तो दूसरी कौम क्या करती है? चढ़ाई करती है। हमारा भी मुखालिफ मसीह इसी तरह है। जब हम चर्च नहीं जाते, जब हम रिफाकत से हटकर होते हैं, जब हम खुदा की पासदारी में नहीं रहते, तो क्या होता है? इब्लीस हम पर गालिब आता है। हालेलुया। और जब इब्लीस गालिब आता है तो क्या होता है? हम नढाल हो जाते हैं, हम कमजोर पड़ जाते हैं, हम परेशानियों में घिर जाते हैं, और हम क्या कहते हैं कि देख वहां पर जहां पर जंग थी वहां पर तो यहोवा मसीह ने उठा खड़ा किया, लेकिन आज हम अपनी जंग में जिस तरह से फंसे हुए हैं, ये भी मेरे अजीजों एक जंग है। ये परेशानी की जंग है, ये उलझनों की जंग है, ये मुसीबतों की जंग है, ये बेरोजगारी की जंग है। यहाँ पर भी अमालेकी हैं। अमालेकियों से मुराद ये है कि हमारे लिए मुखालिफ, जो हमारे साथ जंग करते हैं, जो हमारे लिए कमजोरी का बायस बनते हैं। लेकिन याद रखें, जब तक मूसा ने अपने यहोवा नसीब के निशान को, फतह के निशान को, यानी कि हमारे लिए एक ऐसा निशान बख्शा गया जिसका कोई भी मुकाबला नहीं है। मसीह यीशु ने हमें सलीब का निशान बख्शकर फतह बख्शी है, और फतह का ये निशान जब हम उठाकर इस बात का इकरार करते हैं कि हाँ तू ही यहोवा नसीब है, और तू ही कुदरत का खुदा है, तू ही हशमत का खुदा है, तो याद रखें हम अपनी इस दुनियावी जिंदगी में भी जंग में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन याद रखें, यहाँ पर इस हवाले में कलीसियाई कंट्रीब्यूशन के बारे में बहुत खास समय मिलता है। इस कॉन्टेक्स्ट को जब हम पढ़ते हैं तो इस पहरे में हमें खास तौर पर दो ऐसे कलीसियाई रुकन नजर आते हैं जो इस हवाले में बयान ने पढ़ा। मैं जल्दी से उसे क्लोज कर रहा हूँ कि एक तरफ मूसा का भाई हारून, और दूसरी तरफ एलिएल का बेटा हूर, जो कि मूसा के बाजुओं को नीचे नहीं आने देते, और वो उन्हें बुलंद रखने के लिए, ताकि हमारी कौम जीत सके और मूसा की प्रार्थना रुक ना जाए, मूसा की दुआ रुक ना जाए, बल्कि हम फतहमंद हों। और वो एक तरफ से हारून और एक तरफ से हूर उसे उठाते हैं, और अपने आका, अपने उस्ताद को एक पत्थर पर बिठाकर दोनों बाजुओं को बुलंद कर देते हैं और उसकी प्रार्थना को जारी रखते हैं। और जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ? वो जंग में फातेह होना शुरू हो गए। सूरज डूबने तक उन्होंने क्या किया? जंग को फतह कर लिया। हालेलुया। और ये जंग कब फतह हुई? याद रखें, जब इसके साथ चर्च यूनिटी कायम हुई। हालेलुया। मूसा से मुराद खुदा का खादिम है, हारून और हूर से मुराद कलीसियाई रुकन है जो खादमों को सपोर्ट करते हैं। याद रखें, खादम अकेला अपनी तरफ से कुछ भी नहीं, जब तक कि कलीसिया उसके साथ का हो। क्या आप जान सकते हैं कि मैं आपको एक ऐसी बात बताऊं कि आप जिससे वाकिफ भी हैं और आप इस बात से मुनकर हो जाए? क्या यीशु को शख्सी तौर पर किसी की जरूरत थी? अब आप कहेंगे बिल्कुल, आपके पास जवाब होगा नहीं। अगर यीशु को शख्सी तौर पर यूनिटी की जरूरत नहीं थी तो फिर शागिर्दों का आगाज क्यों किया गया? खुदावंद हुक्म देते हैं बाबर भाई, खुदावंद हुक्म फरमाते हैं जाओ लादी के बच्चे को क्या करो? ले आओ। अगर
सवारी करने के लिए खुदा यीशु को जरूरत थी तो वो खुद क्यों नहीं गए? समझ सकते हैं? ये बात लाजिम है कि उस्ताद को शागिर्दों की जरूरत थी और इसी यूनिटी को हम आगे बढ़ाते हैं। आज मसीह यीशु की खिदमत मेरे और आप तक पहुंची है तो इसका मेन मकसद यही है कि यीशु मसीह यूनिटी को बढ़ा रहे हैं। याद रखिए, अगर हम ये कहें कि हमारा उस्ताद हमारे दरमियान है तो बाइबल मुकद्दस में आगे इस हिस्सा को जब पढ़ेंगे तो लिखा है, लिख दे यशवा आज से बातों को दर्ज कर दे ताकि कौमें निस्बना में जब आगे बढ़े तो वो भी ये सीख सके कि हाँ, मूसा का खुदा जो फाते खुदा है, यशवा का खुदा जो फाते खुदा है, और हूर का खुदा यशवा का, हारून का और इस्राएल का खुदा फाते है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, ये मुकाशफा जो मुकद्दस मूसा नबी पर खुदावंद ने अयान किया आज भी कलाम अक़दस में दर्ज है। हम ये ना सोचें कि हाँ, खुदा सिर्फ मूसा से ही वफादार रहा। हालेलुया। खुदा आपकी नस्लों से भी वफादार रहेगा। मैं यही बात कहता हूँ, बहन रजिया के भाई फयाज का बेटा, हम ये कहते हैं कि भाई फयाज बड़े अच्छे हैं, उनसे बढ़कर अच्छे उनके बच्चे भी हो सकते हैं। ये कलाम हमें सिखा रहा है कि मैं सिर्फ मूसा से या आपके बाप दादा से ही सिर्फ बढ़ चढ़कर मोहब्बत नहीं करता, मैं आपकी नस्लों से भी करता। हालेलुया। और इस पहले में हमें, इस सारे विर्द में हमें ये बात मिलती है, वो वफादारी की है कि जहाँ पर कलीसिया को वफादार होने की ज़रूरत है, कलीसिया वफादार हो जाए, बेदार हो जाए और सीख सके कि हाँ, वाकई जिंदा खुदा हमारे लिए जंग लड़ता है। मेरे अजीजों, दानियल की तरह सीख पाले। दानियल की तरह, दानियल को शेरों की मार में जब फेंका गया तो वहाँ पर क्या हुआ? मौजज़ा हुआ। कितने लोग वाकिफ़ है इस बात से, दानियल नबी के मौजज़े से? लेकिन दानियल नबी की हालात जिंदगी से क्या आप वाकिफ हैं? हम दानियल के मौजज़े की कुदरत से तो वाकिफ हैं कि शेरों की मांग में शेरों के मुंह को सील दिया गया, खुदा ने कुदरत के साथ ये कर दिया। क्या रोजमर्रा की दानियल की जिंदगी से वाकिफ नहीं? क्या हम दानियल की तरह जो प्रैक्टिकली लाइफ है उससे वाकिफ नहीं? जिस बात पर मेरे अजीजों हमें आने की जरूरत है, उस बात पर हम कलीसिया रुक ही नहीं पा रहे। वहां पर ठहरने की जरूरत है कि दानियल का खुदा दानियल से इसलिए मोहब्बत करता था क्योंकि दानियल दिन में 3 मरतबा घुटनों पे आता। हालेलुया। वफादारी की बात को सीखिए कि दानियल का खुदा इसलिए वफादार था क्योंकि दानियल उससे वफादार था। हालेलुया। दानियल दिन में 3 मरतबा झुकता और घुटनों पर आकर कहता, खुदावंद तू यहोवा मसीह है। मैं किसी ऐसे खुदा को नहीं मानता जो माबूद है, वो तो महज बुत है और वो तो नेस को नबूद हो जाएंगे, लेकिन तू ही मेरा जिंदा राफे खुदा है, तू ही मेरा यहोवा नसी है और तू ही मेरे लिए मौकम चेतान है। हालेलुया। याद रखें, इसलिए शेरों ने उस पर हमला नहीं किया, बल्कि उसका तवक्कल जिस पर था इसलिए हमला नहीं हुआ। हालेलुया। आज भी हमारी जिंदगी पर बहुत सारे अटैक होते हैं भाई शेर, आज भी हमारी जिंदगी पर बहुत सारे ऐसे वाक़यात सामने आते हैं जिसमें क्या होता है, हम बुज़दिल हो जाते हैं। सो मेरे अजीज़ों, आज भी हमें इस कलाम के वसीला से बरकत तभी मिलेगी जब हम इसकी नसीहत को सीखेंगे, जब हम दानियल की तरह खुदा की हजूरी में जाएंगे, जब हम मर्दे खुदा मूसा की तरह जिस तरह वो पहाड़ पर जोरी होकर, जोरी बाजू बनकर
उसके लिए हारून और हूर ने उठाए रखे हाथों को फतह के लिए ललकारा और उन्होंने अमालेकियों ने जंग की और जंग में जो है वो खुदावंद ने इसराइल को फतह दी। आज भी हमारी जिंदगियों में फतह मुमकिन है, लेकिन वक्त आपको दानियल की तरह झुकने की जरूरत है और उस यहोवा नसी के निशान को सरबुलंद करने की जरूरत है। आज भी हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपने काम काज के लिए एक जंग के लिए हर रोज निकलते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम अपनी अपनी झंडियों को जो अपनी तरफ से हमारे पास है उनको लेकर आगे निकलते हैं। कोई काम की जिम्मेदारी है, कोई बेरोजगारी के बायस निकलता है और हम क्या करते हैं कि हाँ अच्छा चलो ठीक है भाई कमाई कर गया है ना प्यो इन्होंने पापा कितने गए ने जी काम पे गए हैं। अच्छा और वो वहां पर क्या है एक मूसा की सूरत में अपने खानदान के लिए जदोजहद कर रहे हैं। इतने हारून ते हूर केड़े ने घर के बच्चे ने बीवी जो पीछे ये नहीं सोच रहे कि हम उस थके हुए बाजुओं को ऊपर करें, हम उनके लिए दुआ में ठहरे, हम उनके लिए बरकत हासिल करें, हम कहें खुदावंद पाक खुदा तू मूसा के बाजुओं को नीचे ना ले देना, बल्कि हम उसके लिए उसके मददगार ठहरते हैं। आज ना मियाँ बीवी मियाँ के लिए नहीं वफादार ठहर रही, औलाद भी इसी तरह से। तो जंग में हम फाते होना चाहते हैं, फिर हो जो फिर करो, फिर लगे रहो, डटे रहो। शाम को जो फिर साहब आते ने पूछते ने कहते आ है यार 150 कर ला ये ना बंदोबस्त आज तो दिहाड़ी भी नहीं लगी क्यों पैशेरे इस तरह। तो फिर की एदा मतलब की कि उस मूसा का बेचारे का की हाल वहाँ जिसे नाल को खलोता ही नहीं पिया। हालेलुया। भाई ने मुझे इल्तिजा की यशवा के लिए दुआ करे, यशवा का सो मैंने ये बात आपको सिखाई है कि आपको अगर किसी को मूसा बनाना है तो उसके लिए हारून और हूर के जैसे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, उन जोरी बाजुओं के नीचे मददगार ठहरना पड़ेगा ताकि आप जंग कर सके, ताकि आप इस मुआशरे में भी कामयाब हो सके। हालेलुया। सो प्यारी बहनों अपने अपने खानदानों में जाइएगा। जब आप अपने खामदों को काम पर भेजती हैं, जब आप बेटी को काम पर भेजती हैं तो पीछे दुआ कीजिए। हालेलुया। खुदावंद आपके खानदानों में बरकत लाएगा। आप हैरान हो जाएंगे, झोलियां फटना शुरू हो जाएंगी, इस कदर आप उससे फतामंद होंगे। हालेलुया। सो मैंने आपको आपके टाइम से 5 मिनट ज़्यादा लिए हैं, इसके लिए माफ़ खाऊँ। खुदावंद आपके कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। आइए अपनी आंखें बंद करें। खुदा तेरे लोगों ने बहुत सारी बातों को सीखा। अगर मैंने खुदा तेरा कलाम बयान करने में कोई कोताही की है तो इस बात के लिए माफ़ी चाहता हूँ। बस अपनी कलीसिया को बोलो मंजूर फरमा और इनको खुदा बड़ी बरकतों से मालामाल कर इसी हमारे खुदा के वसीला से। आइए हम दोस्ताइश में आगे बढ़ेंगे और अपने हदिया नजराने पेश करेंगे। ज़बूर 72 के साथ। चलो ठीक है। यीशु